Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Students, we were reading chapter 2nd when Frankenstein was just a kid. And in this chapter, we have completed exercise C. Last video our topic was think and answer exercise C. So we will complete this exercise C in our FAD English Literature notebook. And today we are going to read exercise A. So today's our topic is imagery word. So we will read today imagery word of our chapter 2 when Frankenstein was just a kid of English literature book as with Esther. So all students pay special attention in your class and listen to my words clearly because today's our topic is very important. Because in our today's class we will read that what's an imagery word and what's type of imagery कि imagery के type क्या होते हैं और imagery word हुई होता क्या है. Okay, what's the definition of an imagery word? Clear? So student, let's see that what's an imagery कि एक imagery क्या होता है. Okay, let's see. Look at the page number 40. We are going to read chapter 2nd when Frankenstein was just a kid, and in this chapter today we will read imagery word. So let's see. Read these lines from the poem. Read means पढ़िए, this means ये, lines means पंक्तियाँ, from the poem means होता है कविता. Okay, from means से. Read these lines from the poem. It means कविता से ली हुई इन पंक्तियों को पढ़िए. कविता से ली गई इन पंक्तियों को पढ़िए. Let's read these lines which we take from the poem. जो poem से ली गई है. Bright yellow, red and orange. The leaves come down in hosts. Okay, bright means चमकीला, yellow means पीला, red means लाल, and means और, orange means नारंगी. Bright yellow, red and orange. चमकीला पीला, लाल और नारंगी. The leaves come down in hosts. Okay, the leaves means पत्तियाँ. It's a plural form of leaf. Leaf का plural form leaves होते हैं ना. We have read about singular and plural noun and we have read all rules of singular to plural noun, that how can we convert some words singular to plural nouns. Okay, सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स हम लोग रीड कर चुके हैं. हमें ये भी पता है कि सिंगुलर टू प्लूरल नाउन में कैसे चेंज करते हैं. लीफ, LEAF, लीफ मीन्स होता है पत्ती. एंड वी नो दैट द लास्ट लेटर ऑफ दिस वर्ड लीफ इज एफ. जो लीफ का लास्ट लेटर होता है LEAF. एंड वी कन्वर्ट सिंगुलर टू प्लूरल नाउन दिस वर्ड लीफ from dropping F from this word and add VES in place of F. ओके, क्या करते हैं हम F को ड्रॉप कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं F को और F के प्लेस पे हम VES को ऐड कर देते हैं. तो LEAVES हो जाता है लीव्स. इस मीन्स पत्तियाँ. ओके, लीव्स मीन्स पत्तियाँ. कम डाउन इट्स मीन नीचे आती हैं, गिरती हैं. ओके, इन मीन्स में हॉस्ट. हियर द मीन ऑफ हॉस्ट दैट, वैसे तो हॉस्ट का मीन मेजबान होता है, बट हियर द मीन ऑफ हॉस्ट दैट ऑटम बोल सकते हैं. पतझड़ का वेदर जो होता है, पतझड़ का जो सीजन होता है उसे बोलते हैं. ओके, क्लियर. हॉस्ट मीन्स वैसे मेजबान होता है. जैसे एक वर्ड होते हैं उसके बहुत सारे मीन होते हैं ना, वैसे हॉस्ट का मतलब वैसे तो मेजबान होता है, बट यहाँ हियर द मीन ऑफ हॉस्ट दैट ऑटोमन इट्स मीन पतझड़. ओके, स्प्रिंग के बाद तो जो ऑटोमन के बाद जो हमारा एक सीजन होता है, हमारी एक ऋतु होती है हॉस्ट पतझड़. ओके, द लीव्स कम डाउन इन हॉट्स. इट मीन पत्तियाँ पतझड़ के मौसम में नीचे गिर जाती हैं. क्लियर. लेट्स सी the definition of an imagery. Okay, कि what's imagery, की imagery क्या होता है. Okay, क्या है imagery? The use of figurative language or description that appeals to our senses, sight, smell, taste, touch and feel is termed as imagery. Student, we know that there are 5 sense organs. Okay, हमारे 5 sense organs होते हैं ना, 5 संवेदनशील हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, जैसे आई है, स्किन है, ओके, टंग है, तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना. तो ये हमें जो इमेजरी है ये इन्हीं 5 सेंस से हमारे रिलेटेड है. ओके, दी यूज फर्स्टली आई वांट टू से एक्सप्लेन दिस वर्ड इमेजरी. ओके, इमेजरी मीन्स स्टूडेंट होता है कल्पना. ओके, कल्पना होता है. रीड दिस. द यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज और डिस्क्रिप्शन दैट अपील्स टू अवर सेंसेस, साइट, स्मेल, टेस्ट, टच एंड फील इज टर्म्ड एज इमेजरी. ओके, तो the use of figurative language means होता है, figurative means होता है अलंकारिक. language means भाषा. figurative language it's mean अलंकारिक भाषा. ओके, अलंकारिक भाषा. और means या description means होता है विवरण. ओके, description means विवरण. ओके, तो किसी अलंकारिक भाषा या विवरण, use means उपयोग. ओके, that means जो appeals
here the mean of appeals to our senses. okay, appeals का मीन्स हो गया हमारी जो सेंसेस मीन्स हो गया इंद्रिया. ओके, appeals to our senses इट्स मीन हमारी इंद्रिया. जैसे साइट हो गया इट्स मीन दृष्टि, स्मेल मीन्स महक, टेस्ट मीन्स स्वाद, टच मीन्स स्पर्श एंड फील मीन्स अनुभव. ओके, इस टर्म एज इमेजरी. ओके, इट्स मीन अलंकारिक भाषा या विवरण का उपयोग जो हमारी इंद्रिया दृष्टि, महक, स्वाद, स्पर्श और अनुभव को आकर्षित करता है उसे बोलती है इमेजरी, कल्पना. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इमेजरी वर्ड इन शॉर्ट. अब मैं आपको इन शॉर्ट संक्षेप में इसकी डेफिनेशन को बता रही हूँ कि स्टूडेंट जो साइट जैसे हो गया, ओके, जैसे दृष्टि हो गई, स्मेल हो गई, महक हो गई, टेस्ट हो गया, स्वाद हो गया, टच हो गया, इट्स मीन स्पर्श करना, एंड फील मीन्स अनुभव करना. ओके, तो इट्स मीन जो वह शक्ति या भाव जो मन में नई, अनोखी, अनदेखी, अनसुनी आदि बातों के स्वरूप को उपस्थित करता है उसे बोलती है इमेजरी. इट्स मीन कल्पना. कल्पना क्या होता है? व्हाट इज दिस इमेजरी? व्हाट इज दिस कल्पना? क्या है इमेजरी? जैसे आप कुछ आपका जो वी कैन से दैट द सेकेंड नेम ऑफ इमेजरी थॉट. हमारा जो विचार होता है, हमारा जो थॉट होता है उसे हम बोल सकते हैं इमेजरी. जैसे आप हमारा जो माइंड होता है हमेशा उसमें कुछ ना कुछ चलता रहता है ना. आप इमेजिन करते रहते हो ना. तो कभी आप इमेजिन करते हो कि हाँ हम स्कूल जा रहे हैं, है ना, और एग्ज़ाम चल रहे हैं, है ना, और हम पेपर दे रहे हैं, और सपोज कभी आप इमेजिन करते हो कि हाँ हम फर्स्ट आ गए एग्ज़ाम में. ओके, हमने टॉप किया है, फर्स्ट रैंक आई है मेरी पूरी क्लास में. ओके, सब आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं. ओके, आप बहुत हैप्पी है. तो आप एक इमेजिन करते हो ना, एक जो कल्पना करते हो, जो सोचते हो आप, आपके जो माइंड में चलता है, ओके, जिससे आप साइट, स्मेल, टेस्ट, टच और फील नहीं कर सकते बट इससे रिलेटेड होता है, तो इसे बोलते हैं इमेजरी. इट मीन कल्पना करना. ओके, कल्पना करने को बोलते हैं इमेजरी. जो आप सोचते हो, ओके, जिसके बारे में आप विचार करते हो, जिसके बारे में आपका थॉट होता है, इट्स मीन कल्पना करना, सोचना, जिसे आपने कभी जो नया हो, ओके, जो न्यू हो, जो कोई ऐसा नहीं कि जो पास्ट में हो गया आप उसे इमेज कर रहे हो. ओके, जो न्यू हो, नया हो, कोई थोड़ा स्ट्रेंजर हो, अनोखा हो, ओके, और अनदेखा हो. इट्स मीन कि अनविजुअल हो. इट्स मीन आपने उससे, आपके साथ वो अभी आपकी लाइफ में हुआ नहीं, अनदेखा है, आपने उसे नहीं देखा है. ओके, या अनसुना, या आपने उसे नहीं सुना है. मतलब आप अपने मन से जो कुछ भी सोचते हो, आपके जो थॉट्स होते हैं वो आपकी इमेजरी होती है, वो आपकी कल्पना होती है. ओके, जो सपोज डेट आपका बर्थडे आने वाला होता है, आप इमेजिन करते हो ना कि बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, है ना, और केक आएगा, सब डेकोरेट वगैरह होगा, इतने गिफ्ट्स मिलेंगे, इसको इनवाइट करेंगे. तो आप जो एक आपके माइंड में जो एक पूरा जो चलते हैं ना सीन, वही आपकी इमेजरी हो जाती है. जो कुछ न्यू आप सोचते हो उसे बोलते हैं इमेजरी, कल्पना करना. ओके, let's see. It is one of the most important things writers and poets do to create pictures in the minds of their readers. It helps the readers imagine the scene and the characters. तो it's one of the most important things. ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है. important means महत्वपूर्ण, thing means चीज़. ओके, तो क्या महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि एक जो राइटर, जो हमारे राइटर्स होते हैं, इट्स मीन जो हमारे लेखक होते हैं, राइटर्स है ब्लू फॉर्म में है. ओके, जितने भी हमारे लेखक होते हैं, पोट्स होते हैं, इट्स मीन कवि होते हैं, राइटर. ओके, अ पर्सन हु राइट अ स्टोरी वी कॉल राइटर. एक जो पर्सन जो स्टोरी राइट करता है, कहानी लिखता है, टेल करता है, ओके, तो उससे हम क्या बोलते हैं? राइटर बोलते हैं. अ पर्सन हु राइट अ पोम, एक पर्सन जो पोम को स्पीक करता है, पोम को राइट करता है, उसे बोलते हैं पोइट, बोलते हैं कवि. ओके, अच्छा, जो पोइटेस भी हमारी होती हैं, कवित्री भी होती हैं, जो फीमेल होती है वो पोइटेस होती है. ओके, और जो मेल होते हैं पोइट बोलते हैं. तो जो एक राइटर्स हमारे जितने भी हमारे जो पोइट्स हैं, हमारे जो लेखक हैं जो स्टोरी राइट करते हैं, हमारे जो कवि हैं जो पोम राइट करते हैं, जिन्होंने जैसे हमारे फ्रैंकनस्टीन की जिन्होंने पोम राइट की हुई है, कैन नेस्बिट है, वो हमारे पोइट है ना. ओके, और जो स्टोरी राइट करते हैं उन्हें राइटर बोलते हैं. तो हमारे जितने भी राइटर्स हो गए, पोट्स हो गए, लेखक और कवि हो गए, इनमें इनकी सबसे एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये होती है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इनमें ये अच्छी क्वालिटी होती है, महत्वपूर्ण इनकी चीज़ ये होती है कि ये कैसे स्टोरी राइट करते हैं. इनकी कोई भी स्टोरी हो, राइटर की कोई स्टोरी हो या पोइट की कोई पोम हो, ओके, एक कहानी रीड करें हम या एक कविता रीड करें हम, तो जब भी हम कुछ रीड करते हैं तो ये अपनी स्टोरी को, अपनी पोम स्टोरी को या अपनी पोम को, कहानी को या कविता को ऐसे राइट करते हैं कि हम जो कुछ भी रीड करते हैं उस पोम को या स्टोरी को, तो हमारे माइंड में पूरा वो सीन क्रिएट होने लगता है. ओके, पूरी पिक्चर्स आने लगती है, उसकी पूरी ऐसा फील होता है कि ये सब हमारे सामने हो रहा है. ओके, और स्टूडेंट वैसे तो ये तभी होता है जब किसी चीज़ पे हम अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट लगाते हैं, पूरा हमारी ध्यान केंद्रित होता है किसी एक चीज़ पर. अगर आपका क्लास में पूरा अच्छे से ध्यान है
तो आप क्या करते हो, जो कुछ भी जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप उसे इमेजिन करते हो, उसे समझने की कोशिश करते हो, आपके माइंड में पूरा वो चलने लगता है। जैसे कि हमने जो फ्रैंकनस्टीन की जो स्टोरी रीड की है, तो जब मैंने आपको फ्रैंकनस्टीन की स्टोरी सुनाई ओके कि कैनस भी इसके पोर्ट हैं और ये क्या चाहते हैं, ग्रीन वेजिटेबल बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं और ये अपनी मदर फादर को एक स्टोरी के थ्रू एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल खाने से ना, जो कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल खाता है तो वो पूरा ग्रीन टर्न हो जाता है, उसकी पूरी ग्रीन कलर में पूरा वो टर्न हो जाता है, बदल जाता है। तो और वो बोल रहे हैं कि हमें कभी भी ग्रीन वेजिटेबल खाने को मत देना, नहीं तो हम भी फ्रैंकनस्टीन की तरह पूरी ग्रीन हो जाएंगे, है ना। ये स्टोरी रीड की थी। तो जब मैंने आपको स्टोरी ये रीड कर रही थी, मैंने आपको इसको समरी एक्सप्लेन कर रही थी, तो आपके माइंड में सारे चल रहा होगा ना कि हाँ फ्रैंकनस्टीन ऐसे ग्रीन था, हाँ पूरा ग्रीन था, वो उसके मदर फादर उसको फोर्स करे कि बेटा ग्रीन वेजिटेबल खाओ। और वो फ्रैंकनस्टीन की स्टोरी अपनी कैनस भी जो फ्रैंकनस्टीन की स्टोरी अपनी मदर और फादर को टेल कर रहे हैं ना, तो सीन क्रिएट हुआ था। तो कोई भी स्टोरी रीड करे, पोम रीड करे, तो हमारे माइंड में क्या होता है, पिक्चर क्रिएट होने लगती है। हमें ऐसा फील होता है कि सब हम इमेजिन करते हैं उस चीज़ को। वैसे तो सिर्फ लाइंस राइट होती हैं, है ना, सेंटेंसेस राइट होते हैं हमारी बुक में, पिक्चर बहुत कम होती है। एक एक मोमेंट की तो पिक्चर होती है ना, बहुत कम पिक्चर दी जाती हैं, जैसे हमारी कोई भी पोम हो या थोड़ी बहुत पिक्चर्स दी है ना ओके। लेकिन हम यहाँ ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ फ्रैंकनस्टीन के यहाँ मदर फादर नहीं है ना, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं कि फ्रैंकनस्टीन के मदर फादर यहाँ हैं और इसे फोर्स कर रहे हैं उसे ग्रीन वेजिटेबल खाने के लिए। ओके सॉरी, कैन नेस्बिट के हमारे यहाँ पे मदर एंड फादर ने फोर्स कर रहे हैं, तो कैन नेस्बिट ने फ्रैंकनस्टीन की स्टोरी सुनाई। फ्रैंकनस्टीन तो यहाँ पे है ओके, इनकी पिक्चर दी हुई है यहाँ पे फ्रैंकनस्टीन की, बट यहाँ ओके तो यहाँ पे कैन नेस्बिट नहीं है, कैन नेस्बिट की फोटो नहीं है, कैन नेस्बिट की फोटो नहीं डिस्क्राइब की, लेकिन हम इनकी फोटो को इमेज कर सकते हैं, इनकी फोटो की कल्पना कर सकते हैं कि कैन नेस्बिट कैसे अपनी मदर फादर को कन्विंस कर रहे हैं, उनके मदर फादर कैसे हैं ओके। तो जो हम एक राइटर और पोइट में यही सबसे अच्छी बात होती है कि कोई भी स्टोरी या कोई भी पोइट ऐसे राइट करते हैं कि हम उसे इमेजिन, उनकी स्टोरी को हम सिर्फ लाइन्स रीड करेंगे और पिक्चर हमारे माइंड के सामने क्रिएट होने लगेगी, हमारे माइंड में पूरी वो स्टोरी प्ले होने लगेगी, जैसे कि हम टीवी में देखते हैं ओके वैसे ही सब चलने लगता है कि हम इमेज करते हैं किसी चीज़ को रीड करने के बाद। तो इतने अच्छे से राइटर और पोइट किसी चीज़ को राइट करते हैं। इट हैव्स द रीडर्स इमेजिन द सीन एंड द कैरेक्टर। सेम वे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो रीडर होते हैं, रीड मीन्स पढ़ना, रीडर्स मीन्स पढ़ने वाले, जितने भी पढ़ने वाले होते हैं स्टोरी या पोम जो रीड करते हैं, तो वो उनके माइंड में जो सीन होता है, सीन मीन ड्रेस ओके, कैरेक्टर मीन्स भूमिका या उनका जो रोल है वो क्या होने लगता है, वो क्रिएट होने लगता है। ये रीडर को हेल्प करता है, पढ़ने वाले की हेल्प करता है उस ड्रेस को इमेज करने में, उस ड्रेस की कल्पना करने में। क्लियर? इन दी अबव लाइन्स, ऊपर की लाइनों में, दी लीव्स आर डिस्क्राइब्ड बाय देयर कलर्स and movement of coming down, thus creating a visual related to sight and kinesthetic related to movement imagery. Okay, तो ऊपर की लाइनों में जो दिया दी लीव्स, जो लीव्स हैं, पत्तियां, वो डिस्क्राइब कर रही है, इसमें वर्णन कर रही है किसका, दियर कलर्स, अपने रंगों का ओके, कलर्स का डिस्क्राइब कर रही ना, ब्राइट येलो, रेड एंड ऑरेंज, द लीव्स कम डाउन इन हॉस्टेस ओके। तो लीव्स किस कलर के, ब्राइट येलो, रेड एंड ऑरेंज। तो ये जो लीव्स है ना, ये अपने कलर को डिस्क्राइब कर रही है एंड मूवमेंट ऑफ कमिंग डाउन, और नीचे आने के मूवमेंट को, नीचे आने की गतिविधियों को डिस्क्राइब कर रही है ओके। दी लीव्स कम डाउन इन हॉर्सेस, तो हम यहाँ इमेजिन कर सकते हैं कि लीव्स हैं ओके, येलो, रेड एंड ऑरेंज है और वो नीचे आ रही है, नीचे गिर रही है ओके। लीव्स वैसे मोस्टली ग्रीन होती है, बट जो प्लांट में जिनके वाटर के लेक हो जाते हैं, वाटर की कमी हो जाती है, तो जो हमारी जो लीव्स होती है वो येलो हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा कमी होती है तो रेड या ऑरेंज होती है ओके। तो मोस्टली वैसे ग्रीन होती है लीव्स ओके, क्लोरोफिल के कारण। तो जो लीव्स हैं तो इसमें मूवमेंट को डिस्क्राइब किया गया है कि इस लाइंस में जो लीव्स हैं वो अपने कलर को डिस्क्राइब करें और अपनी मूवमेंट को डिस्क्राइब करें कि वो कैसे नीचे आ रही ओके। दस क्रिएटिंग अ विजुअल ओके, इस प्रकार क्रिएटिंग अ विजुअल, इट्स मीन, एक विजुअल मीन्स होता है स्टूडेंट ड्रेस ओके, विजुअल मीन्स दैट व्हाट वी सी, कि हम क्या देख रहे हैं ओके। तो एक दृश्य को ये शो कर रहा है रिलेटेड टू साइट, तो ये देखने से संबंधित है, विजुअल जो है ये देखने से संबंधित है। एंड काइनेस्थेटिक, हियर द मीन ऑफ काइनेस्थेटिक दैट कि काइनेस्टिक मीन्स होता है कि हम मतलब काइनेस्टिक रिलेटेड टू मूवमेंट, तो गति संवेदी बोल सकते हैं हम कि मूवमेंट से संबंधित है। ये जो हमारा काइनेस्टिक वर्ड है, इट्स मीन होता है कि
गतिविधियों से संबंधित होता है। ओके, तो गति संवेदी बोल सकते हैं काइनेस्टिक को, और ये जो काइनेस्टिक वर्ड है ये रिलेटेड टू मूवमेंट इमेजरी। ओके, तो ये गतिविधि से संबंधित है। तो जो हमारा विजुअल हो गया और काइनेस्टिक हो गया, ये हमारी इमेजरी है, ये हमारी क्या है, कल्पना है। कल्पना हमारी इमेजरी वर्ड है, काल्पनिक वर्ड है। सम ऑफ द अदर टाइप्स ऑफ इमेजरी आर ऑडिटरी रिलेटेड टू साउंड, olfactory related to scent, gustatory related to taste, and tactile related to touch. Okay, some of the other types of imagery are, तो कुछ अदर टाइप्स है, कुछ दूसरे प्रकार है। अदर टाइप्स में दूसरे प्रकार है इमेजरी के, इट्स मीन कल्पना के। ओके, वो है ऑडिटरी। ऑडिटरी मीन्स होता है, या द मीन ऑफ ऑडिटरी दैट श्रवण या सुनने वाला। ओके, तो श्रवण या सुनने वाला रिलेटेड टू साउंड, ये ध्वनि से संबंधित। सुनना किससे संबंधित है, ध्वनि से संबंधित। ऑल्फैक्टरी, या द मीन ऑफ ऑल्फैक्टरी दैट, ऑल्फैक्टरी मीन्स स्टूडेंट कि ये हमारा सेंट से रिलेटेड टू सेंट से, इट्स मीन ये महक से संबंधित है। सेंट मीन्स खुशबू या महक। ओके, तो ऑल्फैक्टरी इट्स मीन महक लेना, और रिलेटेड टू सेंट इट्स मीन रिलेटेड मीन्स संबंधित है, सेंट मीन्स खुशबू या महक, तो ये महक से संबंधित है हमारा ऑल्फैक्टरी। गस्टैटरी, हियर द मीन ऑफ गस्टैटरी दैट स्वाद विषयक है, इट्स मीन स्वाद से संबंधित है। ओके, स्वाद लेने वाला, रिलेटेड टू टेस्ट, तो ये स्वाद से संबंधित है हमारा गस्टैटरी। ओके, एंड लास्ट है आपका टैक्टिल, और दिस वर्ड टैक्टिल इट्स रिलेटेड टू टच, ये टच से संबंधित है। ओके, रिलेटेड मीन्स संबंधित, टच मीन्स होता है स्पर्श करना, छूना। ओके, तो स्टूडेंट यू नो व्हाट, इमेजरी वर्ड आपका क्लियर हो गया ना, कि बोल सकते हैं कि ऐसी शक्ति या भाव जो मन में नई, अनोखी, अनदेखी या अनसुनी आदि बातों को उपस्थित करता है, उसे हम कल्पना कहते हैं। इट्स मीन कि जो हमने कभी ना देखा हो, ना सुना हो, और जिसे हमने कभी टच ना किया हो, जिसके बारे में कभी सोचा ना हो, जिससे कभी टेस्ट ना किया हो, लेकिन जो मतलब हम इमेजिन करते हैं, इट्स मीन इतना समझ लो कि जो हम थॉट होते हैं ना, हमारे जो विचार होते हैं, कि हम जो भी सोचते हैं तो वो हमारे इमेजरी होता है, काल्पनिक होता है जो हम सोचते हैं। ओके, जिसके बारे में विचार करते हैं। सपोज दैट आपका बर्थडे है, आपको किसी पार्टी में जाना है, आप इमेजिन करते हो कि मैं ये ड्रेस पहनूंगी और पार्टी में जाऊंगी, या कोई भी फंक्शन वगैरह है, या आपके एग्ज़ाम वगैरह आने वाले, तो आप इमेजिन करते हो कि हाँ अच्छे से पढ़ाई करेंगे, एग्ज़ाम देंगे और हम एग्ज़ाम में फर्स्ट आएंगे। आप इमेजिन करते हो कि एग्ज़ाम चल रहे हैं, हम एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए, रिजल्ट का टाइम है, हम फर्स्ट आए, सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, हमें प्राइज़ मिला है, सब लोग बहुत हैप्पी है ना। तो जो होने वाला होता है, ओके, तो उसे आप जो इमेजिन करते हो, उसके बारे में सोचते हो, उसकी कल्पना करते हो, वो आपका इमेजरी होता है। There are 6 types of imagery. First, visual, related to sight. Visual, it's mean dress. Related to sight, it's mean दृष्टि से संबंधित. It's the first type of imagery. Your second types of imagery is kinesthetic, related to movement. Kinesthetic, it's mean होता है गति संबंधी, and it's किससे संबंधित है, मूवमेंट से संबंधित होता है, ये गतिविधि से संबंधित होता है। ओके, इट्स अ सेकंड टाइप ऑफ इमेजरी। एंड द थर्ड टाइप ऑफ इमेजरी इज ऑडिटरी, रिलेटेड टू साउंड। ऑडिटरी मीन्स स्टूडेंट होता है श्रवण या सुनना, रिलेटेड टू साउंड इट्स मीन कि ये ध्वनि से संबंधित होता है। इट्स अ थर्ड टाइप ऑफ इमेजरी, ऑडिटरी। ओके, योर फोर्थ टाइप्स ऑफ इमेजरी इज अल्फैक्टरी, रिलेटेड टू सेंट। ओके, अल्फैक्टरी इट्स मीन होता है महक लेना, एंड रिलेटेड टू सेंट इट्स मीन कि ये किससे संबंधित होता है, ये खुशबू से संबंधित होता है, सेंट से संबंधित होता है। ओके, इट्स अ फोर्थ टाइप ऑफ इमेजरी, अल्फैक्टरी। ओके, एंड फिफ्थ टाइप ऑफ इमेजरी इज गस्टैटरी, रिलेटेड टू टेस्ट। गस्टैटरी इट्स मीन होता है स्वाद विषय, एंड ये रिलेटेड टू टेस्ट होता है, इट्स मीन ये स्वाद से संबंधित होता है। ओके, एंड योर 6 number imagery is the type of 6 number imagery is we can say that the last type of imagery is tactile, related to touch. Okay, tactile related to touch, it's mean related में होता है, tactile means होते हैं स्पर्शनीय। ओके, एंड रिलेटेड मीन्स संबंधित, टू टच मीन्स स्पर्श या छूना। ओके, tactile इट्स मीन स्पर्शनीय, एंड रिलेटेड टू टच इट्स मीन स्पर्श या छूने से संबंधित। ओके, तो स्टूडेंट आई हैव एक्सप्लेन यू द डेफिनेशन ऑफ इमेजरी and all types of imagery. Okay, I have spoken you that there are 6 types of imagery. Okay, so and I hope you must have understood the definition of imagery and types of imagery. You have no problem in this topic, imagery and its type. Okay, तो आपको ये समझ में आया होगा इमेजरी की डेफिनेशन और इमेजरी के टाइप्स, यही आशा करती हूँ। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज ए। सो ऑल स्टूडेंट लुक एट द एक्सरसाइज ए। वर्क इन पेयर्स एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ इमेजरी इन द गिवन सेंटेंसेस और फ्रेजेस। वर्क इन पेयर्स इट्स मीन आपको, पेयर्स मीन्स होता है जोड़ा या युग्म। ओके, जोड़ी या युग्म में वर्क करना है, एंड आइडेंटिफाई मीन्स पहचानना है, द टाइप्स मीन्स प्रकार को, ऑफ इमेजरी मीन्स इमेजरी का। ओके, द टाइप्स ऑफ इमेजरी इट्स मीन कल्पना के प्रकार को पहचानना है। ओके, इन द गिवन सेंटेंसेस इट्स मीन दिए हुए वाक्यों में, और मीन्स या फ्रेजेस।
phrases means student vakyans, and I think that I have no need to explain these word phrases because I already explained these word phrases, okay, in your English language topic. Okay, English language का जब हमने एक टॉपिक रीड किया था तो उसमें हमारा जो सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस था बहुत ही डिटेल में हमने रीड किया हुआ है. फ्रेजेस मीन्स वाक्यांश. ओके, तो वर्क इन पेयर्स एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ इमेजरी इन ए गिवन सेंटेंस ऑफ फ्रेजेस. क्या करना है, जो सेंटेंसेस दिए हैं ओके और जो फ्रेजेस दी उसमें क्या करना है, हमें टाइप्स ऑफ इमेजरी आइडेंटिफाई करना है कि किस प्रकार का कल्पना है, किस प्रकार की कल्पना है, वो हमें टाइप को फाइंड आउट करना है. ओके, उसे आइडेंटिफाई करना है. लेट्स सी फर्स्ट सेंटेंस. वी कांट से इट्स अ सेंटेंस बिकॉज इट्स अ फ्रेजेस. ओके, ये एक फ्रेज है, इट्स अ फ्रेज, या एक फ्रेज है, वाक्यांश है. एंड फ्रेज क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट दिस फ्रेज ओके दिस ग्रुप्स ऑफ वर्ड, these groups of words don't give us a complete meaning. ये हमें कोई complete meaning नहीं दे रहा है और ये स्टूडेंट ये फुल स्टॉप से इसका एंड भी नहीं है. ओके, तो स्टूडेंट ऐसा ग्रुप्स ऑफ वर्ड जो कोई complete meaning ना दे और फुल स्टॉप से एंड ना हो तो वो क्या होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, वाक्यांश होते हैं. वाक्य का एक सिर्फ अंश होते हैं, पूरी वाक्य नहीं होते. ओके, तो वी कैन सी दैट this groups of word, these groups of words not give us a complete meaning. complete meaning नहीं दे रहे हो, देखो फुल स्टॉप से एंड भी नहीं है, डॉट डॉट से एंड है. ओके, लेट्स सी दिस फ्रेज, सिल्वर फ्रूट अपॉन सिल्वर ट्रीज. ओके, चांदी के पेड़ पर चांदी के चांदी के ट्रीज इट्स मीन पेड़. ओके, सिल्वर मीन्स चांदी, फ्रूट मीन्स फल. ओके, अपॉन पर सिल्वर मीन्स चांदी, ट्रीज मीन्स पेड़. ओके, सिल्वर फ्रूट अपॉन सिल्वर ट्री इट्स मीन चांदी के पेड़ों पर चांदी के फल. ओके, नाउ ऑल स्टूडेंट टेल मी दैट हैव यू एवर सीन सिल्वर फ्रूट और सिल्वर ट्री. आपने कभी चांदी के फ्रूट या चांदी का पेड़ देखे? नहीं देखे होंगे ना. तो ये सब हम इमेजिन कर सकते हैं बिकॉज ऐसा कभी नहीं होता, हम कभी नहीं देख सकते क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं, ना तो सिल्वर के फ्रूट्स होते हैं और ना ही सिल्वर के ट्रीज होते हैं. ओके, तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं. ओके, तो इमेजिन, ये जो इमेजिन वर्ड्स है, आपका जो टाइप्स ऑफ इमेजरी है फॉर फर्स्ट नंबर फ्रेज इज विजुअल. विजुअल है. ओके, क्योंकि हम अगर इमेजिन करेंगे तो हम इसे क्या करेंगे, सी करेंगे, देखेंगे इसे. ओके, साइड करेंगे. तो दिस फर्स्ट नंबर फ्रेज इज विजुअल टाइप्स ऑफ इमेजरी. It's related to sight. Okay, so all students write here visual, VISUAL, visual. It's a type of imagery for first number phrase. Clear? Let's see second number sentence. It's a sentence because it's a start with capital letter and it's a give us a complete mean and end with a full stop. Okay, I wandered lonely as a cloud. Okay, I wandered lonely as a cloud. It's mean मैं एक बादल की तरह अकेले रहती हूँ. ओके, तो स्टूडेंट्स मैं एक बादल की तरह अकेले रहती हूँ. इट्स अ काइनेस्थेटिक इमेजरी बिकॉज इट्स अ रिलेटेड टू मूवमेंट, एक मूवमेंट की से रिलेटेड है. ओके, तो ये आपका कौन सा हो गया, काइनेस्थेटिक टाइप्स ऑफ इमेजरी. ओके, KINAESTHETIC. ओके, KINAESTHETIC, काइनेस्थेटिक टाइप्स ऑफ इमेजरी फॉर सेकेंड नंबर सेंटेंस. ओके, look at the third number sentence. Your third number sentence is the loud thunder woke me up. Okay, the loud thunder woke me up. It's mean woke up. It's a second form of wake up. Wake up की second form है. It's mean thunder means होता है तेज गड़गड़ाहट, तेज साउंड. बिल्कुल. ओके, तेज गड़गड़ाहट ने मुझे जगा दिया. ओके, तो तेज गड़गड़ाहट ने मुझे जगा दिया. जो थंडर होगा ये एक साउंड है ना, साउंड है, गड़गड़ाहट एक साउंड है ना, तो इट्स अ रिलेटेड टू साउंड, ये साउंड से रिलेटेड है. तो इट्स अ टाइप ऑफ इमेजरी ऑडिटरी. तो ये ऑडिटरी टाइप्स ऑफ इमेजरी AUDITORY, ऑडिटरी. ओके, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू साउंड. Here we talk about sound. Okay, so all students, this third number sentence is a type of imagery auditory. Okay, तो auditory write down करना है यहाँ पे. जो 4 number sentence is the aroma of our perfume spread through the room. Okay, it's mean कि उसकी इटकी में कमरे में फैल गई. ओके, तो इट्स अ रिलेटेड टू ऑल्फैक्टरी. ओके, ऑल्फैक्टरी इससे रिलेटेड है क्योंकि जो सेंट है तो आप क्या करते हैं, उसे ऑल्फैक्टरी करते हैं. इट्स मीन उसकी महक लेते हैं ना सेंट की, तो यह सेंट से रिलेटेड है. तो इट्स अ 4 number sentences योर ऑल्फैक्टरी टाइप्स ऑफ इमेजरी. ऑल्फैक्टरी टाइप्स ऑफ इमेजरी OLFACTORY. ओके, क्लियर, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू सेंट, सेंट से रिलेटेड है. क्लियर? Let's see fifth number sentence. Sorry, it's not our sentence, it's a phrase. Okay, ये एक phrase है, sentence नहीं. It's only a phrase, सिर्फ एक वाक्यांश है. Because it's not in the with a full stop. ये full stop से इसका end नहीं हो रहा है and it's not giving a complete mean. complete mean भी नहीं दे रहा. Okay, let's see fluttering and dancing in the breeze. Fluttering means होता है फड़फड़ाना and means of dancing means डांस करना, नृत्य करना, नाचना. in the breeze, breeze means होता है कि हवा में. Okay,
फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज इट्स मीन हवा में फड़फड़ाना और नाचना. ओके, तो इट्स योर काइनेस्थेटिक इमेजरी. इट्स अ काइनेस्थेटिक टाइप्स ऑफ इमेजरी बिकॉज स्टूडेंट इट्स रिलेटेड टू मूवमेंट. मूवमेंट से रिलेटेड है क्योंकि जब भी कोई फ्लटरिंग करता है, फड़फड़ाती है कोई चीज़, तो क्या करती है वो मूवमेंट करती है. अब काइट को ही ले रहे, जब काइट होती है फ्लटरिंग करती है, इधर उधर फड़फड़ाती है ना, आगे पीछे जाती है, तो वो क्या करती है मूवमेंट होता है, उसमें गति होती है. ओके, और डांसिंग, जब कोई भी डांस करते हैं तो वो थोड़ा सा पूरा एक ही जगह पे तो स्टैंड अप होकर डांस नहीं कर सकता ना, तो वो पूरी प्लेस को कवर करता है. ओके, आगे भी जाते हैं, बैक करते हैं, फॉरवर्ड करता है. ओके, लेफ्ट जाता है, राइट जाता है, तो क्या होता है ये जो मूवमेंट प्लेस को ज़्यादा कवर करता है, मूवमेंट होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, काइनेस्थेटिक हो गया बिकॉज रिलेटेड टू मूवमेंट. मूवमेंट से रिलेटेड है, गतिविधि से रिलेटेड है. ओके, वैसे हमारा साउंड से भी सॉरी ये जो फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज है जो हमारा कि हवा में फड़फड़ाना और नाचना. ओके, तो ये हमारे क्या है, काइनेस्थेटिक टाइप्स ऑफ इमेजरी बिकॉज इट्स रिलेटेड टू मूवमेंट, क्योंकि मूवमेंट से रिलेटेड है कि हवा में फड़फड़ाना और नाचना. ओके, let's see 6 number imagery. Our 6 number sentences. The stone landed with a splash in the lake. Okay, तो स्टोन मीन्स पत्थर, लैंडेड मीन्स उतरा, विथ मीन्स साथ में, ए मीन्स एक, स्प्लैश मीन्स होता है छीट मार के, इन द लेक मीन्स होता है झील. द स्टोन लैंडेड विद अ स्प्लैश इन द लेक इट्स मीन पत्थर झील में एक छीट के साथ उतरा. ओके, तो इट्स योर ऑडिटरी इमेजरी, ऑडिटरी टाइप्स ऑफ इमेजरी बिकॉज इट्स रिलेटेड टू साउंड. साउंड से रिलेटेड है. एंड कैसे साउंड से रिलेटेड है, क्योंकि जब आप क्या करते हैं, किसी स्टोन को किसी वाटर में डालो, लेक में, अच्छा लेक हो या रिवर हो, किसी में भी डालो, वाटर में सिर्फ उसे डालो, तो क्या करेगा वो कि जो वाटर होगा वो थोड़ा सा जम करके हमारे ऊपर आएगा. और जब वाटर पे आप स्टोन को डालेंगे, पत्थर को डालेंगे, तो साउंड होगा ना, एक साउंड होगा, आवाज़ होगी ना, तो ये जो साउंड होगा तो साउंड से रिलेटेड है, तो कौन सा हमारा इमेजरी होगा, ऑडिटरी इमेजरी होगा. क्लियर, AUDITORY. वैसे स्टूडेंट ये जो 6 नंबर हमारा जो सेंटेंस है ना, इट्स विल बी मूवमेंट इमेजरी भी हो सकता है, हमारा मूवमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है, काइनेस्टिक इमेजरी भी हो सकता था, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है वाटर में, जब हम स्टोन डालेंगे तो स्टोन मूवमेंट करेगा ना, तो वैसे तो ये हमारा हो सकता था काइनेस्थेटिक इमेजरी भी बिकॉज इट्स आल्सो बी रिलेटेड टू मूवमेंट. बट आई थिंक इट्स अ परफेक्ट टाइप्स ऑफ इमेजरी है ऑडिटरी, कि ऑडिटरी ज़्यादा परफेक्ट है. ओके, तो राइट है ऑडिटरी. Okay, let's see 7 number phrase which is the last phrase of this exercise here. A host of golden daffodils. Okay, a host means एक समुदाय होता है, host means होते हैं समुदाय या भीड़. Okay, of golden, of means का golden means सुनहरा, daffodils का. Okay, a host of golden daffodils it's mean गोल्डन डैफोडिल्स का या सुनहरी डैफोडिल्स का एक समुदाय, या गोल्डन डैफोडिल्स का एक झुंड, एक भीड़. ओके, तो इट्स अ विजुअल टाइप्स ऑफ इमेजरी बिकॉज इट्स रिलेटेड टू साइट. ओके, बिकॉज वी कैन सी अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, एक हम गोल्डन डैफोडिल्स के भीड़ को, उसके समुदाय को देख सकते हैं ना, साइट से रिलेटेड है, तो हमारे ये विजुअल टाइप्स ऑफ इमेजरी है, VISUAL विजुअल. ओके, now we are going to solve exercise B. Student, I hope you must have understood this exercise A. You have no problem in this exercise A because I have explained you all words with its mean. Okay, तो मैं ऐसा करती हूँ कि एक्सरसाइज ए में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम जा रहे हैं एक्सरसाइज बी को सॉल्व करें. We will definitely solve this exercise B, but not in our book. We are going to solve this exercise B in our FAIR English Literature notebook. Okay, so let's see. Firstly, student, we read exercise D and after it we will solve this exercise B in our FAIR English Literature notebook. Okay, exercise D, answer the following questions. Question number first, what is imagery? Imagery क्या है? Answer, the use of figurative language or description that appeals to our senses. Sight, smell, taste, touch and feel is termed as imagery. For example, I wandered lonely as a cloud, kinesthetic. Okay, imagery क्या है? तो स्टूडेंट, आई एक्सप्लेन यू दैट द डेफिनेशन ऑफ इमेजरी, दैट व्हाट इज द इमेजरी, कि इमेजरी क्या होता है पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ओके, तो क्या है द आंसर जो है इसका कि अब द यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज एज डिस्क्रिप्शन दैट अपील्स टू अवर सेंसेस, साइट, स्मेल, टेस्ट, टच एंड फील इज टर्म्ड एज इमेजरी. इट्स मीन कि अलंकारिक भाषा या अलंकारिक भाषा में जो भी हमारा अलंकारिक भाषा या विवरण का उपयोग जो हमारी इंद्रिया, दृष्टि, महक, स्वाद, स्पर्श या अनुभव को आकर्षित करती है, उसे हम इमेजरी कहते हैं, कल्पना कहते हैं. ओके, जैसे मैं एक आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं एक बादल की तरह अकेली हूँ, तो इट्स अ काइनेस्थेटिक बिकॉज इट्स रिलेटेड टू काइनेस्टिक है, इट्स मीन गति, इट्स रिलेटेड मूवमेंट है, गति से संबंधित है, तो ये क्या है आपका काइनेस्थेटिक इमेजरी. ओके, लेट्स सी सेकंड नंबर क्वेश्चन. सेकंड नंबर क्वेश्चन इज राइट द टाइप्स ऑफ इमेजरी.
इमेजरी की टाइप्स लिखिए कि इमेजरी कितने प्रकार की होती है उनको राइट करिए. ओके स्टूडेंट, वी हैव रीड टाइप्स ऑफ इमेजरी. ओके लेट्स सी आंसर ऑफ सेकंड नंबर क्वेश्चन. देयर आर 6 टाइप्स ऑफ इमेजरी. यहाँ पे 6 टाइप्स इमेजरी है. इट्स मीन कल्पना 6 प्रकार की होती है. ओके इमेजरी के 6 प्रकार है. फर्स्ट विजुअल, रिलेटेड टू साइट. विजुअल इट्स मीन कि विजुअल इट्स मीन दृष्टि. ओके दृश्य. एंड रिलेटेड टू साइट दृष्टि से संबंधित. विजुअल मीन्स दृश्य, रिलेटेड टू साइट इट्स मीन दृष्टि से संबंधित. काइनेस्टिक इट्स मीन होते गति संवेदी. रिलेटेड टू मूवमेंट इट्स मीन मूवमेंट से वी कैन से इन हिंदी दैट गतिविधि से संबंधित. ओके ऑडिटरी इट्स अ थर्ड टाइप्स ऑफ इमेजरी. इट्स मीन होता है श्रवणीय सुनना. रिलेटेड टू साउंड इट्स अ आवाज से ध्वनि से संबंधित है. 4 टाइप्स ऑफ इमेजरीज. ऑल्फैक्टरी रिलेटेड टू सेंट. ऑल्फैक्टरी मीन्स होता है महक लेना. एंड रिलेटेड सेंट इट्स मीन ये खुशबू से संबंधित है, इत्र से संबंधित है. एंड 5th टाइप्स ऑफ इमेजरी इज गस्टेटरी रिलेटेड टू साइन टेस्ट. एंड गस्टेटरी इट्स मीन होता है गस्टेटरी मीन्स होता है स्वाद लेना, स्वाद से संबंधित है. रिलेटेड टू टेस्ट इट्स मीन ये टेस्ट से संबंधित है, स्वाद से संबंधित. ओके एंड 6 नंबर टाइप्स ऑफ इमेजरी टैक्टिल एंड इट्स रिलेटेड टू टच. टच से संबंधित है. इट्स मीन टैक्टिल मीन्स हो गया स्पर्शनीय. ओके और ये टच से संबंधित है. इट्स मीन ये टच इट्स मीन वी कैन से स्पर्श या छूने से संबंधित है. ओके so there are 6 types of imagery and I have explained you question number first and second of this exercise D, and I hope you must have understood this exercise D. You have no problem in this exercise D. Okay, let's see this exercise. Our exercise B it give some examples of imagery from the poem. Give means दीजिए, some means कुछ, examples means उदाहरण, of means के, imagery means कल्पना, from the poem means कविता से. Give some examples of imagery from the poem. कविता से कल्पना के कुछ उदाहरण दीजिए. Student, we have read this chapter second when Frankenstein was just a kid, and we know very goodly that this chapter based on a imagery. Okay, ये imagery पे based है. It's mean एक imagery story है which Can Nesbitt is telling his parents. Okay, for convincing them to that they never gave him to green vegetable for eating. Okay, कि वो कभी भी उन्हें green vegetable खाने को ना दे. तो बस कैन नेस्बिट जो पोएट हैं इस कविता के ओके तो वो सिर्फ अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए एक इमेजरी स्टोरी उन्होंने सुनाई है. जो फ्रैंकेनस्टीन वाज जस्ट अ किड एक इमेजरी स्टोरी है बिकॉज फ्रैंकेनस्टीन कोई रियल में कोई एक किड नहीं था. ओके ये सिर्फ एक इमेजरी स्टोरी है, अपने मन से बनाई हुई एक पोम है जो कैन नेस्बिट ने इमेज की है, उन्होंने क्रिएट की है. ओके तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी इस चैप्टर में क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर है व्हेन फ्रैंकेनस्टीन वाज जस्ट अ किड इट्स अ इमेजरी. ओके इट्स अ इमेजरी पोम. एक इमेजरी पोम एक काल्पनिक कविता है, इसलिए इस चैप्टर में इमेजरी को कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दी है. ओके लेट्स सी आंसर ऑफ दिस एक्सरसाइज बी. ओके योर फर्स्ट नंबर एग्जांपल ही एट हिज स्पिनच सैलेड पीस. ओके तो स्टूडेंट्स ही मीन्स उसने एट मीन्स खाया, इज मीन्स अपना, स्पिनिच मीन्स पालक, सैलेड मीन्स सलाद, पीस मीन्स मटर. ही एट हिज स्पिनिच सैलेड्स पीस उसने पालक सैलेड्स और मटर खाया. एट है इट्स सेकंड फॉर्म ऑफ ईट. ईट का सेकंड फॉर्म है इट्स प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस है आपका. ओके बिकॉज हियर वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ ईट. ईट की सेकंड फॉर्म यूज करें इसलिए. ओके तो उसने पालक सैलेड्स और मटर खाया. तो इट्स स्टूडेंट फर्स्टली वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट वी are taking this line he ate his spinach salad piece from the first stanza of this poem. हमने जो पोम है हमारी व्हेन फ्रैंकेनस्टीन वाज जस्ट अ किड जो इसका फर्स्ट स्टैंजा है ना तो इसकी 3rd नंबर लाइन ली हुई है. ओके इट्स अ 3rd नंबर लाइन ऑफ फर्स्ट स्टैंजा. फर्स्ट स्टैंजा की 3rd नंबर लाइन है. ओके तो उसने पालक सैलेड्स और पीस खाया. तो जब वो स्पिनच सैलेड और पीस खाएगा तो उसे टेस्ट लगेगा ना, स्वाद लगेगा ना. तो इट्स रिलेटेड टू टेस्ट. ये स्वाद से रिलेटेड है, टेस्ट से रिलेटेड है. सो दैट्स व्हाई इट्स अवर गैस्ट्रेटरी टाइप्स ऑफ इमेजरी. ओके तो ये मेरे गैस्ट्रेटरी टाइप्स है इमेजरी का. GUSTATORY गैस्ट्रेटरी. ओके इट्स रिलेटेड टू टेस्ट. क्लियर. ओके लेट्स सी सेकंड नंबर एग्जांपल. दैट टर्न हिज स्किन कंप्लीटली ग्रीन. ओके दैट मीन्स जो तब ओके दैट मीन्स तब टर्न हिज स्किन कम्प्लीटली ग्रीन. उसकी त्वचा पूरी तरह से हरे रंग में बदल गई. इट्स आल्सो योर पास्ट इंडिफिनिट टेंस. ये भी आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस है बिकॉज हियर वी यूज टर्न. इट्स अ सेकंड फॉर्म ऑफ टर्न. टर्न की सेकंड फॉर्म में टर्न. ओके तो उसकी स्किन उसकी त्वचा पूरी तरह से हरे रंग में परिवर्तित हो गई. So student firstly we are going to explain that we are taking this line that turned his skin completely green from second stanza. It's this line is second line 4th number line from second stanza. Okay
तो हमने क्या किया हुआ है, ये सेकंड स्टैंजा जो हमारी पोम है इसका सेकंड जो स्टैंजा उसकी 4 नंबर लाइन ली हुई है। ओके, इसका हमने एक एग्जांपल देने के लिए मिजरी का हमने सेकंड नंबर स्टैंजा की 4 नंबर लाइन ली हुई है। ओके, तो उसकी स्किन, उसकी त्वचा पूरी तरह से हरे रंग में परिवर्तित हो गई। तो स्टूडेंट वी कैन सी दैट हिज स्किन कंप्लीटली ग्रीन। ओके, that his skin turned completely green, कि उसकी जो स्किन थी वो पूरी तरह से हरे रंग में परिवर्तित हो गई। हम इमेज कर सकते हैं ना, तो इमेज अगर करेंगे तो हम विजुअल करेंगे ना, साइट करेंगे, देखेंगे ना। ओके, कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ होगा, तो इट्स रिलेटेड टू साइट। ओके, इट्स ये दृश्य से संबंधित है, तो इट्स अ विजुअल टाइप ऑफ इमेजरी। ओके, ये दृष्टि से संबंधित है, तो ये विजुअल है आपका। ओके, टाइप्स ऑफ इमेजरी। लेट्स से थर्ड नंबर एग्जांपल। योर थर्ड नंबर एग्जांपल इज पुअर फ्रैंकेनस्टीन हिज टेल हिज स्टोरी। ओके, दिस लाइन we are taking from the third number stanza. Okay, third number stanza से ली गई है, हमने ये लाइन ली है, poor Frankenstein's tale is sad. Okay, it's the first line of third stanza. ये हमारी थर्ड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन है जो हमने यहाँ पे टेक आउट की है, यहाँ पे जो हमने थर्ड नंबर स्टैंजा से ली हुई है एग्जांपल के देने के लिए। ओके, हियर द मीन ऑफ पुअर दैट बेचारा। ओके, पुअर मीन्स स्टूडेंट होता है गरीब, बट हियर द मीन ऑफ पुअर बेचारा, लेकिन यहाँ पे पुअर का सेंस हम बेचारे के सेंस में ले रहे हैं। ओके, तो पुअर फ्रैंकेनस्टाइन हिज टेल इट सैड। टेल मींस होता है स्टूडेंट स्टोरी। ओके, इट्स मीन कहानी। तो बेचारे फ्रैंकेनस्टाइन की कहानी बहुत ही दुखी है। ओके, तो इट्स रिलेटेड टू साउंड, इट्स योर ऑडिटरी टाइप्स ऑफ इमेजरी बिकॉज इट्स रिलेटेड टू साउंड। ओके, अच्छा ये बताइए आपको क्या हाउ डू यू नो दैट दी पुअर फ्रैंकेनस्टाइन इज अ टेल इज सैड, की जो पुअर फ्रैंकेनस्टाइन है, पुअर फ्रैंकेनस्टाइन है, उसकी जो स्टोरी है वो सैड है। ओके, कैसे आपको पता चला कि जो फ्रैंकेनस्टाइन की स्टोरी सैड है, बहुत दुख भरी कहानी है, पेनफुल की स्टोरी। ओके, तो जब हमने इसकी स्टोरी को लिसन किया, इसकी स्टोरी को सुना, तब हमने जाना ना कि हाँ ये जो इसकी स्टोरी है वो बहुत ही सैड है। ओके, और लिसन कैसे किया, जब कोई किसी ने बताया, जब किसी ने कहा। ओके, तो जब आपने इसकी स्टोरी को सुना तो कैसे सुना इसको, जब मैंने साउंड किया, मैंने बताया आपको। ओके, तो इट्स रिलेटेड टू साउंड। ओके, व्हेन समवन इज टेलिंग यू दिस स्टोरी, जब कोई आपको इस स्टोरी बता रहा है तो वो साउंड कर रहा है ना, इट्स रिलेटेड टू साउंड, इट्स योर ऑडिटरी। तो ये क्या क्या हो गया, ऑडिटरी इमेजरी है, क्योंकि साउंड से रिलेटेड है। ओके, क्योंकि स्टोरी टेलिंग हो रही है। क्लियर? लुक एट द 4 नंबर एग्जांपल. Okay, so mom and dad I am here to say. Okay, so it's this line we are taking from the 4 number stanza. Okay, हमने जो पोम है हमारी व्हेन फ्रैंकेनस्टाइन वाज जस्ट अ किड, इसकी जो 4 नंबर स्टैंजा है उसकी फर्स्ट लाइन ली हुई है. ओके, इट्स अ फर्स्ट नंबर लाइन ऑफ 4 नंबर स्टैंजा. 4 नंबर स्टैंजा की फर्स्ट लाइन है सो मॉम एंड डैड, इसलिए मम्मी और पापा आई एम हियर टू से, मैं यहाँ ये कह रहा हूँ. ओके, तो स्टूडेंट ये जो जो हमारे कैन नेस्बिट हैं इस पोम के पोट हैं. ओके, इस पोम के जो पोइट है वो ये बोल रहे हैं कि अच्छा तो फिर इसलिए मम्मी और पापा मैं ये यहाँ पे ये कह रहा हूँ. तो अब जो कैन नेस्बिट कह रहे हैं, कैन नेस्बिट इज सेइंग समथिंग टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से, अपनी मदर एंड फादर से कुछ बोल रहे हैं तो वो साउंड करेंगे ना, जब बोलेंगे तो साउंड होगा. तो दिस लाइन रिलेटेड टू साउंड, ये जो लाइन है हमारी ये साउंड से रिलेटेड है. ओके, एंड सो इट्स योर ऑडिटरी इमेजरी, इसलिए आपकी ऑडिटरी इमेजरी है AUDITORY, ऑडिटरी. ओके, क्योंकि जब कैन नेस्बिट हमारे जो पोइट हैं इस पोम के, वो अपने फादर और मदर से बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, तो वो जब वो कुछ कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं तो साउंड करेंगे, ध्वनि होगी, आवाज़ होगी, है ना. तो इट्स योर रिलेटेड टू साउंड ऑडिटरी. ओके, तो ये आपका साउंड से रिलेटेड है चूँकि, तो ये आपका ऑडिटरी types of imagery. Clear? Student, I have explained you all example of this exercise B, and I hope you must have understood this exercise B. You have no problem in this exercise B. Clear? Okay, so student, your classwork is that complete exercise A of chapter 2nd when Frankenstein was just a kid in your English literature book, and after it complete and note down exercise B and D of chapter 2nd your Fire English literature notebook. It's a 2 days classwork, and your homework is that learn exercise A and B of chapter 2nd. It's a 2 days homework. Okay, I explain your class and homework again. स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है कि आपको एक्सरसाइज ए जो है ना आपकी चैप्टर 2nd की, वो आपको अपनी इंग्लिश लिटरेचर की बुक में एज इट इज कंप्लीट करना है, नोट करना है. ओके, तो आप बुक में ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, और उसके बाद आपको एक्सरसाइज डी और एक्सरसाइज बी एज इट इज फर्स्टली मेंशन CW, डेट, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, हेडिंग. ओके, एज इट इज आपको एक्सरसाइज डी और एक्सरसाइज बी अपनी फायर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे नोट डाउन करना है. क्लियर? तो ये आपका क्लास वर्क हो गया, और आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स कि आपको एक्सरसाइज ए और बी लर्न करनी है. चैप्टर 2nd की एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी लर्न करनी है.
You can learn exercise A from your English literature book and you can learn exercise B from your English literature fair notebook. ओके, तो एक्सरसाइज ए आप कैसे लर्न करेंगे? अपनी इंग्लिश लिटरेचर की बुक से लर्न करेंगे, ओके, क्योंकि हमने बुक पे सॉल्व की हुई है। और एक्सरसाइज बी कैसे लर्न करेंगे? अपनी इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक से लर्न करेंगे, ओके, क्योंकि हमने एक्सरसाइज बी को अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे सॉल्व किया हुआ है। ओके, क्लियर? तो स्टूडेंट योर क्लास वर्क एंड होमवर्क इज क्लियर ना? सो ऑल स्टूडेंट कंप्लीट योर इंग्लिश वर्क एंड सेंड मी योर वर्क हियर। थैंक यू।